Hello, welcome students. Now, today we are going to discuss e-shopping. So, just similar to e-banking, e-learning, which you have studied in previous class, e-shopping is also a very important concept. Because now these days you have seen that the trend of shopping has been changed, and now most of the people are favoring electronic shopping as compared to the traditional shops because it saves the time, money as compared to the traditional shopping. And at the same time, for the business perspective, the e-shopping has increased the productivity and selling, and that is why it is very important to consider e-shopping as a prime shopping method nowadays. So, e-shopping or online shopping refers to buying product and services over the internet. तो अगर आप इंटरनेट का यूज़ करके कोई प्रोडक्ट या सर्विस ख़रीदते हैं, ये ई शॉपिंग के अंदर आता है. बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं नाउडेज लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे एट्सेट्रा. फ्रॉम दोज वेबसाइट यू कैन शॉप ऑनलाइन. Online sellers describe their product and services through text, photos, and multimedia files. Consumers can purchase vast variety of product and services from any part of the world. This is the magic of e-shopping. That means कि if you want to purchase anything, you just do not need to move from your place. The seller describe their product by pictures, videos, images, text, etc. You just need to identify the right product for you, and then you can place the order, and the order will be shipped to your location irrespective of in which part of the world you are in. Books, clothing, household application, toys, hardware, software, and health insurance are some of the myriad, that is multitude of the product which consumers can buy from an online stores. तो आज की डेट में बुक्स, क्लॉथ, हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, टॉय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं. साथ ही साथ आज के डेट में बहुत सारे ऐसी वेबसाइट भी अवेलेबल हैं जो आपको फूड आइटम्स भी डिलीवर करती हैं लाइक स्विगी, जोमेटो एट्सेट्रा. आप पिज़्ज़ा ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. आप सब्जियां भी बिग बास्केट से और बहुत सारी ग्रॉसरी से भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट्स. इट एक्चुअली सेव्स योर टाइम. नाउ टॉकिंग अबाउट एडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग. द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग इज कन्वीनियंस. इन द केस ऑफ रेगुलर शॉपिंग, अ पर्सन शॉप्स एट अ जनरल स्टोर. पर्सन को खुद से जाना पड़ता है और जनरल स्टोर विजिट करना होता है. टू परफॉर्म दिस शॉपिंग टास्क, वन हैज़ टू ड्राइव टू द स्टोर एंड फाइंड अ पार्किंग प्लेस फॉर द व्हीकल. देन वन नीड टू वॉक ऑन फुट थ्रू द स्टोर until he or she locates the desired product. Moreover, after finding the right product, one may need to stand in a long queue at the cash counter. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी बिग बाज़ार से या किसी जनरल स्टोर से कोई सामान परचेज़ करना है तो पहले आपको जाना होगा वहाँ पे. ड्राइव करके सपोज़ आप गए, वहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया, फिर वहाँ से आप पैदल मूव किए, स्टोर में गए, फिर स्टोर में आपने अपने सामान को एक एक करके ढूंढा. ढूंढने के बाद आप कैश काउंटर पे लाइन में लगे और फिर आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया. इट गोइंग टू टेक few hours. However, with the online shopping, the entire process is very convenient. A person just need to log in on the internet, access the online shopping website, and choose the desired item. The selected item is then kept in a virtual shopping cart until the customer is ready to make the final purchase. तो इसके लिए
आपको केवल लॉगिन करना होगा उस वेबसाइट पे या उस एप्लीकेशन में जिससे आप शॉपिंग करना चाहते हैं। फिर आप ब्राउज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को एक एक करके आप शॉपिंग कार्ट में, वर्चुअल शॉपिंग कार्ट में ऐड करते रहेंगे और तब तक वो आपके शॉपिंग कार्ट में रहेगा जब तक कि आप फाइनल परचेज़ ना कर लो। और इस तरीके से जब आप परचेज़ करते हैं तो आपको कहीं मूव करने की ज़रूरत नहीं है। सिटिंग एट योर होम यू कैन ऑर्डर थिंग्स ऑनलाइन। नेक्स्ट थिंग इज़ इंफॉर्मेशन एंड रिव्यूज़। An online store provide reviews on the product. A customer get additional information like instruction on product uses, manufacturer specification and safety procedures etc. This help in guiding them about the product. जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाएंगे तो उसके जो सर्टिफाइड बायर्स हैं, जो पहले से उसे खरीद रखे हैं, वो रिव्यूज़ लिखे रहते हैं जिनको आप पढ़ के ये जान सकते हो कि प्रोडक्ट किस तरीके का है, वो यूज़ कैसे हो रहा है, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, एंड देन यू कैन मेक योर फाइनल डिसीजन ऑन परचेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। बट इफ़ यू आर विजिटिंग द स्टोर एट दैट टाइम, there is no one who can tell कि I am using this product from this much year and I am not having any problem. You cannot get the review of the product. So in that case online shopping is favorable. Now the third thing is price and selection. So another interesting feature is the cheap deals or and better price we get from the online store because product reach us directly from the manufacturer or seller without any middleman involved. तो अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे शॉपिंग वेबसाइट्स फेस्टिव ऑफर्स लेके आते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे हो गया, अमेजन का ग्रेट इंडिया फेस्टिवल हो गया। तो इसमें जो प्रोडक्ट हैं उनकी प्राइस को वो डाउन करके बेचते हैं और एक्चुअली अगर आप कंपेयर करोगे कभी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोडक्ट की प्राइस में, तो ऑनलाइन प्राइस आपको हमेशा सस्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली आपके एड्रेस पे शिप कर दे रहा है, तो बीच के जो मीडिएटर्स हैं वो हट गए, तो उनका इंटरेस्ट हट गया, उनका कमीशन हट गया और इस तरीके से आपको प्रोडक्ट सस्ते दाम पे मिल जाता है। दे आल्सो ऑफर डिस्काउंट कूपन्स एंड रिबेट। देयर इज़ एन infinite variety of product available online because online shopping allow consumers to browse through products that are made all around the world. So these are the benefits of online shopping. Then next thing is compulsive shopping. Next benefit is compulsive shopping. So most of the time when we go for shopping, we end up buying things which we do not रिक्वायर। जैसे हम किसी दुकान पे गए और ख़रीदने लगे तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हम ख़रीद लाते हैं जो हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है। दिस हैपन ड्यू टू द प्रेशर टैक्टिक्स एंड सेलिंग स्किल ऑफ द शॉपकीपर्स। हाउएवर देयर इज़ नो सच प्रेशर स्ट्रैटेजी इन शॉपिंग, ई शॉपिंग, एंड यू आर फ्री टू बाई प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस एट योर ओन विल। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, जो सेल्समैन है वो कभी कभी आपको इस तरीके से माइंड गेम में फंसा देगा कि आप कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीद के चले आओगे, लेकिन जब आप ई शॉपिंग करने जाते हैं तो आप फ्री हैं, आप प्रोडक्ट को ब्राउज़ करेंगे एंड यू कैन डिसाइड विच प्रोडक्ट यू वांट टू परचेज। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग. At the advantages we are also having some disadvantage too, which we are going to talk about. The first disadvantage is online shopping does not have the personal touch of shopping. जैसे अगर कल कोई कपड़ा आप ख़रीद रहे हैं तो उसको हाथ से छू के ख़रीदेंगे तो उसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आप केवल उसका इमेज देख सकते हैं, उसकी वीडियो देख सकते हैं. Customers also experience a lack of real touch and feeling of merchandise and the ability to try the product like cloth, cosmetics, etc. तो जैसे अगर आप दुकान से कोई क्लॉथ या कॉस्मेटिक खरीद रहे हैं तो आप उसको देख के, पहन के, उसको यूज़ करके भी आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो उस केस में आप ये काम नहीं कर सकते.
Second disadvantage is an important issue in online security, as making payment online is not completely safe. There are many sites which are not secure or do not encrypt the personal credit card data. So if the hacker break into their system, our confidential data can be compromised. तो इससे बचने के लिए हम कर ये सकते हैं कि हम केवल उन्हीं वेबसाइट्स को प्रेफर करें जो वेबसाइट्स हम ये मान के चलते हैं कि वो सेफ़ हैं, जो पॉपुलर यूज्ड वेबसाइट हैं लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन एट्सेट्रा। हम किसी बोगस या डमी वेबसाइट जिसका एडवर्टीज़मेंट हमने देखा उस पे हम नहीं जाएं। हम ऐसी वेबसाइट्स को यूज़ करें जो वर्ल्ड वाइड यूजेबल हो, जिसकी सिक्योरिटी पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। Only a few sites offer free shipping of product, hence the shipping cost act as a big discouragement for the online shoppers. जैसे जो अच्छी वेबसाइट हैं वो फ्री शॉपिंग भी आपको प्रोवाइड करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो शॉपिंग कॉस्ट लेती हैं, तो ऐसे केसेस में ये आपको डिस्करेज कर सकता है। नाउ अ मेजर प्रॉब्लम इन ई शॉपिंग is the hassle in returning the product and follow up on the refund or exchange of items. Because अगर आपको कोई प्रोडक्ट एक्सचेंज करना है तो you have to wait for the time and then you can have the return, and this takes time. This is going to take a few days, which actually in case of normal shopping can be returned easily, but in case of online shopping the process is now tough as compared to the normal shopping. Now there is a huge risk of online fraud. Some sites pretend to be selling product at a marriage price, and customer often receive a low quality or refurbished item for that price. तो कभी कभी ऐसी कुछ बोगस वेबसाइट्स हैं जो आपसे पैसे तो ले लेती हैं, लेकिन आपको गलत प्रोडक्ट या लो क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर देती हैं। एंड समटाइम्स साइट शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली आफ्टर टेकिंग द पेमेंट फॉर आइटम्स। एज अ रिजल्ट द कस्टमर डू नॉट रिसीव एनीथिंग इन रिटर्न फॉर द प्राइस पेड। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, बट if you are using a genuine and widely used website like Flipkart or Amazon, at that time these problems you are not going to face at all. Now sites for online shopping, कौन कौन सी ऐसी साइट हैं जो ज़्यादा यूज़ की जाने वाली हैं? स्टैंडर्ड वेबसाइट हैं जहाँ से आप प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग हैज़ बिकम पॉपुलर ट्रेंड। पीपल have been enjoying the convenience of having their order shipped right to the doorstep. Some of the most popular websites offering this facility are www.ebay.in, flipkart.com, homeshop18.com, myntra.com, snapdeal.com, letsbuy.com, और ये जितने भी आपको यहाँ पे दिख रही हैं आइकन्स, ये सारी की सारी वो वेबसाइट्स हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसे जबोंग, बिगरॉक, जोवी, फर्स्ट क्राई। तो ये वो वेबसाइट्स हैं जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। जैसे रेड बस है तो इससे आप बस बुक कर सकते हैं, स्नैपडील है, जोवी है, इंडिया शॉपिंग टाइम्स है, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स आप प्रेफर कर सकते हैं फॉर शॉपिंग द आइटम्स। So hope you all understand, students. In next video we will talk about e-reservation. Thank you.